Before we go into EWS rules, let me ask one very practical question to all of you. If your family income is below rupees 8 lakhs, are you automatically EWS eligible for CAT and IIMS or other IT admissions? The answer is no. And this is exactly where many students make mistakes. EWS is not just an income certificate, EWS is an income and asset certificate. If check income, asset, family definitions, certificate format, correct financial years, and verification at multiple status, we are going to discuss each and everything in this video. We will cover the complete EWS journey for your CAT 2026 and IIM admissions, and this is going to be you could say, a general video for EWS eligibility for almost all the departments. But today I am going to make it only for CAT 2026 and IIM admissions. If you have any doubt, please ask your doubts in the comment. You will understand who can claim EWS, which family members are counted, how many incomes is calculated, how much income is calculated, which asset can disqualify you, what is the difference between central EWS and state EWS, which certificate year matters, what documents you should keep ready, what to upload in the CAT form, and how IIM's verification works. We have made a video on NCOBC. I am going to put the link of that video in the description. You can go and watch if you are from the NCOBC background. This video is for the EWS. So in this video, we are going to discuss each and every aspects of EWS and many things. But one important point at the start, I would like to say, EWS may get up to 10% reservation framework in CAT and IIM admission. But reservation is not direct admission. You still need performance, profile, eligibility, documents, and consistency. You need to have all these things. If you have reservation, it doesn't mean you are going to get a direct seat. You have to perform. You have to work on your profile. Eligibility is important even for the EWS. You need to have the documents, and consistency in your performance is too much important. So do not select EWS only because someone said सर्टिफिकेट बन जाएगा, किसी ने कहा इसलिए हम EWS सेलेक्ट करें, ऐसा नहीं है. Select EWS only if you are eligible, you are genuine, and your documents can survive verification. I am going to say the important word is पेपर वेरिफिकेशन हो जाएगा तभी हम EWS बनाएंगे, else हम बनाने से बचेंगे. Hi, welcome to education where dreams are not guessed, they are planned. Myself Amiye, and today in this video, your complete EWS masterclass is going to taken by me for CAT 2026 and IIM admission. Let's begin this video. It has a long video. Could be around 12 to 13 chapters, just like the NCOBC. तो आप वीडियो को पूरा देखना, then it is going to help you a lot. Let us first understand what is EWS reservation framework actually means. For CAT and IIM admission, EWS candidates may get up to 10% reservation. Here I am going to say may get up to 10% reservation in the seat matrix for the some IIMs, and for the some IIMs it's fixed for the 10%. The meaning of up to 10% means what? The EWS PWD could come, the general EWS could come, so this is going to maximum 10% of the reservation, depending on the institutes and the program. But please understand these things carefully. 10% reservation does not mean 10% extra marks. It does not mean 10 percentile free fall advantage. It does not mean a guarantee IIM call. And it depends upon many factors, and definitely does not mean a direct admission. Reservation changed the competition framework. Definitely, it gives a separate category pool and category-wise consideration. But the candidates still has to satisfy. You have to satisfy the complete eligibility and selection process. You need to go and write the CAT. आपकी झोली में CAT का marks नहीं आएगा. You need to write the CAT and you need to perform well in the CAT. Though it is possible within a category, but you need to perform. ऐसा नहीं है कि बिना performance से आपका कुछ भी हो जाएगा. You have to have some sectional cutoffs. You need to satisfy the sectional cutoff. You need academic eligibility. You need documents.
एंड लेटर यू नीड टू क्लियर आई एम ए स्पेसिफिक वेरिफिकेशन, यू नीड टू वेरीफाई योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि आज डॉक्यूमेंट्स बन जाता है और कल को वेरिफिकेशन में अगर फेल होते हो तो डेफिनेटली आपको बाहर कर देंगे। नाउ द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग इज many students think EWS is equal to income below 8 lakhs. This is incomplete. EWS means income plus asset plus category status plus proper certificate. बहुत कुछ है। हमें इनकम चाहिए, हमें एसेट अपना देखना होगा, हमें कैटेगरी स्टेटस देखनी होगी अपनी, और प्लस हम प्रॉपर सर्टिफिकेट बना पाते हैं ये देखना होगा। सो द करेक्ट क्वेश्चन इज नॉट मेरी इनकम 8 लाख से कम है या नहीं। द करेक्ट क्वेश्चन शुड बी डज माई कंप्लीट फैमिली इनकम एंड द asset profile satisfy EWS rule? Can I prove it with the correct central format certificate? क्या हम बना सकते हैं? That is what where we decode step by step in this video. This is the important thing. So आपका किया है कि this is up to 10%, डायरेक्ट नहीं है। This is the basic thing which I would like to know in the advance की so that सारे के सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं यहाँ पे सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं है कि सर EWS आपके बोलने से मैंने बनवा लिया, अब एडमिशन ही नहीं हो रहा है। पढ़ना तो पड़ेगा ना, फाइट तो करनी पड़ेगी। नाउ let us understand who can actually claim EWS. EWS is generally for candidates who are not covered under the SC में नहीं है, ST नहीं है, or the not applicable for OBC reservation framework, who also satisfied the prescribed income and asset condition. What does it mean? You are not SC, you are not ST, you are not OBC, and you have asset valuation and everything should be under the prescribed conditions. Then you can, or in the simple word, if you are general or the open category and your asset income satisfied under the some of the rules, you could apply for the EWS. Now think EWS eligibility as the 3 gates. Assume EWS का 3 gates है, then हम सोचेंगे gate 1 category, you should not covered under the central SC ST OBC reservation में आप नहीं आने चाहिए, means you should be the open category. Gate number 2, income gate. Your family gross annual, the word is your family gross annual income should be below prescribed limit, which is 8 lakhs. EWS has family income. NCOBC has the parental income. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपने तो वहां पे पेरेंटल इनकम की बात की थी, यहाँ पे फैमिली इनकम है, हम देखेंगे, इसमें हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। गेट 3, द एसेट गेट. योर फैमिली शुड नॉट क्रॉस disqualifying asset limit such as agricultural land, residential flat or residential plot limits. All 3 gates must be cleared together. सबके सब अगर आपके assets सब सारे बॉक्स में अगर टिक करते हो कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आप EWS के लिए सोच सकते हो। एक भी बॉक्स अगर आपका अनटिक हो जाता है तो नहीं होगा आपका। All 3 gates must be cleared together. इनकम क्लियर बट एसेट फेल, EWS में प्रॉब्लम होगी। एसेट क्लियर है, इनकम फेल है तो EWS में प्रॉब्लम होगी। कैटेगरी स्टेटस गलत है तो EWS में प्रॉब्लम होगी। अ वेरी कॉमन कंफ्यूजन इज स्टेट OBC वर्सेस सेंट्रल OBC। वेरी कॉमन होता था स्टेट OBC, सेंट्रल OBC। सेम कम्युनिटीज मे बी presented in the state list but not in the central list. In such a case, do not decide your CAT category based on the guesswork. Verbal advice और cyber cafe confidence आपको नहीं दे सकता है। Check your exact community name, spelling, state, central list, and the competent authority certificate. For CAT and IIMs admission, central rules matters. अगर उन्हें कुछ डाउट होगा तो वो स्टेट में बात नहीं करेंगे और सेंट्रल लिस्ट को निकालना स्टार्ट करेंगे। सिंपल रूल है, EWS इज नॉट अ शॉर्टकट, इट इज वेरीफाइड एलिजिबिलिटी कैटेगरी। ये सिंपल सा रूल है, आप इसे याद रखिएगा, शॉर्टकट नहीं है। हमें देखना है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछना या हमारी टीम से बात करना। द नंबर इज 9905050159। द मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्ड इन EWS एलिजिबिलिटी इज फैमिली। NCOBC पैरेंटल है, यहाँ फैमिली है। मेनी स्टूडेंट सेड टू मी, सर आई लिव इन अनदर सिटी सो माई पेरेंट्स विल नॉट काउंट। Some say, sir, I'm working, I file my own ITR, so my only income should be count. Married candidates sometimes say after marriage parents are not relevant. These assumptions could be risky. For EWS, the family definitions generally include the candidates, their parents, siblings below 18 years, spouse and children below 18 years. तो आपकी फैमिली में क्या क्या आता है आपका? आप खुद आते हैं, आपके पेरेंट्स आते हैं,
आपके सिबलिंग्स आते हैं इफ देयर एज इज बिलो 18 ईयर्स, आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस आते हैं, एंड चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स आपके फैमिली में आते हैं। तो अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज योर फैमिली। मैं, मेरी वाइफ, मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन अगर 18 साल से कम हैं तो मेरी फैमिली में हैं, मेरे बच्चे अगर 18 साल से कम हैं तो मेरी फैमिली में हैं। तो ये है आपकी ईडब्ल्यूएस का। आपके बच्चे अगर 18 साल से ज़्यादा हैं और कमा रहे हैं तो आपकी फैमिली नहीं है। तो यहाँ पे आप, आपकी वाइफ, 4 लोग तो हैं। आप हो, आपकी वाइफ है, आपके मदर और फादर हैं, ये 4 लोग आपकी फैमिली हैं। बाकी फैमिली को हम काउंट किसको नहीं करते हैं? भाई बहन जो 18 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वो हमारी फैमिली में नहीं काउंट होते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। हमारे बच्चे जो 18 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वो काउंट नहीं होते हैं, इसे याद रखिए। और वन थिंग इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स इंक्लूड है, देयर इज नो ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन जस्ट बिकॉज द कैंडिडेट्स इज अबव 18 वर्किंग। आप अपने बच्चों को हटा सकते हो, 18 साल से ज़्यादा हो गए तो आपकी फैमिली में नहीं है। बहुत कमाल का रूल है। हमारे बच्चे हमारी फैमिली में नहीं हैं अगर 18 साल से ज़्यादा हो गए तो। हमारे बच्चे अगर 20 साल से हैं तो फैमिली में नहीं है, लेकिन हमारे पेरेंट्स अगर 80 साल के हैं तो हमारी फैमिली में है। हमारा बच्चा 20 साल का है, वो 20,000 रुपये कमाता है, वो हमारी फैमिली में नहीं है, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो 80 साल के हैं, उनका 80,000 का पेंशन आता है, वो हमारे फैमिली में है। समझ रहे हो? यही रूल है। अब हम इसे चेंज तो नहीं कर सकते ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट यही रूल है। सेपरेट एड्रेस में प्रूफ रेसिडेंस, आप उसको रेसिडेंस प्रूफ कर सकते हो। सेपरेट बैंक अकाउंट में प्रूफ फिनेंशियल एक्टिविटी, आपका बैंक अकाउंट अलग है। सेपरेट आईटीआर में प्रूफ द टैक्स फाइलिंग्स, बट दोज डू नॉट ऑटोमेटिकली चेंज द फैमिली डेफिनेशन। फैमिली डेफिनेशन हमारी है। हमारे 18 साल से बच्चे हमारे नहीं हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारे हैं। बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स को तो आपके साथ होना चाहिए, बट आपको रिबेट दिया जाता है बच्चों के केस में। दिस इज अ गुड थिंग ना आईटीआर में। आप समझे? आप क्या समझे? पेरेंट्स आपके हमेशा होंगे, बट आप बच्चों को रिबेट दे रहे हो। दिस इज अ गुड थिंग। फॉर मैरिड कैंडिडेट्स स्पाउस ऑल्सो बिकम द रिलेवेंट, अगर आप शादीशुदा हो तो, एंड पेरेंट्स में स्टिल रिमेन रिलेवेंट अंडर द प्रिस्क्राइब डेफिनेशन। अब पेरेंट्स होंगे या नहीं होंगे, इसमें भी हम आगे देखते हैं। अबाउट सिबलिंग्स आर नॉट नॉर्मली एक्सप्रेसली लिस्टेड इन द सेंट्रल फैमिली डेफिनेशन। सिबलिंग्स का कुछ नहीं है, बट प्रॉपर्टी ओनरशिप्स एंड द लीगल रिकॉर्ड्स शुड स्टिल बी हैंडल्ड केयरफुली। अगर आपका प्रॉपर्टी है और आपके सबके सिबलिंग्स साथ डिसाइड होते हैं तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। If property is joint, inherited, under partition, or mutation is pending, do not hide it. Disclose and get proper authority clarification. अगर है तो बताइए, हाइड मत कीजिए। बहुत सारे लोग ईडब्ल्यूएस और एनसीओबीसी में खेल जाते हैं, बट अगर आप खेलना चाहते हो, जो कि मैं नहीं बोलूंगा, you should be paper ready. A special situation like death of parents, legal separation, adoption, guardianship, divorce or एक्स्ट्रा एंगेजमेंट्स नीड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ये सारे कुछ हो सकते हैं यूज। फैमिली इज नॉट डिसाइडेड बाय इमोशंस और लिविंग अरेंजमेंट, इट इज डिसाइडेड बाय रूल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। आपकी फैमिली आप डिसाइड नहीं करोगे, फॉर एटलीस्ट ईडब्ल्यूएस आपकी फैमिली रूल्स एंड डॉक्यूमेंट्स डिसाइड करेगी। बिफोर वी गो डीपर इनटू इनकम एंड एसेट रूल, आई वांट टू कनेक्ट दिस विथ योर एक्चुअल कैट एंड आई एम प्लानिंग। बहुत जरूरी है कि हम एक्चुअल कैट और आई एम प्लानिंग कैसे करते हैं। कैटेगरी एलिजिबिलिटी इज ओनली वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वंस यू नो योर कैटेगरी, you should be your target percentile, which IIMs are realistic, where your profile is strong, and where you need improvement. This is exactly where we create Profile Mapping Pro and Educate Supermarks, India's only perfect Profile Mapping Pro mapped with the Supermarks, which I can say proudly. Profile Mapping Pro is not just a basic form. It helps you to understand your MBA admission strategy through your academics, category, work experience, डाइवर्सिटी एंड टारगेट कॉलेज। वी लेट यू नो कि कौन सा कॉलेज आपको भरना है, कैसे प्लान करना है। इट हेल्प्स यू टू मूव योर गेस्ट वर्क टू प्लानिंग। आई ऑलवेज सेड द ड्रीम इज नॉट अ गेस्ट वर्क, ड्रीम इज डन बाय द प्रॉपर प्लानिंग। Educate Supermarks take it further. A normal mock gives you marks. Our AI mock analysis goes deeper into your mistake patterns, time management, accuracy, section-wise gaps and improvement direction. Will give you direction. बाकी जगह आपको marks मिलते हैं, हम आपको direction देते हैं. So when you are watching this EWS video, do not think only about certificate. Think about the complete journey. One correct category
and the correct documents. 2. Right target college and profile mapping. 3. Focused mocks analysis and improvement. 4. Final CAT and IM admission execution. This is why our line is simple. इस कोर्स से आगे रियल डायग्नोसिस तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे. If you're preparing for the CAT 2026, do not depend only on the random percentile. Hopes, build everything. Hope is important, but build a plan, map your profile, take serious mocks, then improve your direction. So how can you join the Profile Mapping Pro? Link is given in the description, or you can WhatsApp or call to the 990 5050 159. It start, if you want only Profile Mapping Pro, only Profile Mapping, it start from 199. Then you can add the section test, you can add the super mocks, and many other things could be added add-on. So start with the 199 course, map your profile for a different college, and then plan. And in this 199, you can take the previous year CAT question with the AI analysis. तो हम रुकेंगे नहीं. मेरा एम आपके साथ क्या है? वी वॉन्ट ए स्टूडेंट बेनिफिट कंपनी. लेट्स सी, इस गोल के साथ मैं आगे बढ़ता हूं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फैमिली इनकम रूल. फॉर EWS, द फैमिली ग्रॉस annual income should be below 8 lakhs. Yes, the gross annual income should be below 8 lakhs. Two words are very important. बहुत important है. Gross and below. ये जो दो words है ना, बहुत important है. Gross means it's not just take home salary. It is not just taxable income after deduction. It is not only the final member or the final numbers in your tax calculation. Gross family income can include salary, business income, professional income, agricultural income, pension, rent, interest, and other relevant sources of income is important. NCOBC बहुत सिंपल सा था. EWS को डेफिनेटली कॉम्प्लिकेट बनाया गया है क्योंकि ये बाद में इंक्लूड किया गया है. तो जनरल में भी जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं उनके लिए बना है, बट इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द लूप होल्स इन दिस. इट हैज सम. लोग इसको यूज करते हैं. मैं आपसे बताना चाहता हूं, इफ यू आर पेपर रेडी एंड यू हैव अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ कैट एंड आपने प्रोफाइल मैपिंग में अपना मैप कर लिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, स्टार्ट कैट प्रिपरेशन along with EWS. Give your best in during the CAT preparation. Write the CAT, score in the CAT. Then you need to fill the form, check in the Profile Mapping Pro. You need to go for the VAT, GD, and the PI. Join the CV12 and convert your dream BE schools. We never guess, we plan. So candidates' income, father income, mother income, spouse income, and applicable minor family members' income may become relevant. Let's take and understand with an example. फादर की इनकम 4.2 lakhs है, मदर की इनकम 1.6 lakhs है, आपकी इनकम 1.4 lakhs है, एग्रीकल्चर से इनकम 1 लाख आता है, तो टोटल आपका 8.2 lakhs हो जाता है अगर हम सबको ऐड करें तो. इवन इफ द कैंडिडेट्स पर्सनल इनकम इज लो, द फैमिली ग्रॉस इनकम क्रॉस द लिमिट, सो द इनकम टेस्ट फेल हो चुका है. 8 lakhs चाहिए था, आप 8.2 हो गए हैं. सर हम किसी को कम कर दे, डिस्कस विद द कंसल्टेंट. Also below rupees 8 lakhs means less than 8 lakhs. Exactly 8 lakhs should not be treated casually as safe. हमें 8 lakhs से कम चाहिए. Common mistakes are no ITR means no income. Taxable income is the EWS income. Agricultural income should not be counted. Pension should be ignored, or deductions can reduce EWS income. नहीं, ये रिस्क है. These are risky. बहुत ज़्यादा रिस्क है. Do not think कि ऐसा होगा वैसा होगा. Do a source-wise income calculation. Do not guess. For this, if you want to consult your EWS or the CA, या आप किसी से कंसल्ट करना है तो कंसल्ट कीजिए. अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्रोफाइल कंसल्टिंग हमारा ज्वाइन कर सकते हो. ₹499 और 999 हमारा कंसल्टिंग फीस है. आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसमें हम आपको बस EWS को नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. सब कुछ हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं. नाउ वी कैन बी द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट ऑफ EWS. वी कुड थिंक, जो मुझे लगता है, मैंने बहुत कुछ लोगों को ये देखा है इग्नोर करते समय. मेनी स्टूडेंट फोकस ओनली ऑन ₹8 lakhs इनकम, बट EWS इज नॉट ओनली इनकम, जैसे मैंने आपको पहले बताया है. इवन इफ फैमिली इनकम इज लो, एसेट्स आर चेक्ड सेपरेटली. देयर आर 4 मेजर एसेट रिडक्शंस दैट स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड. पहला, एग्रीकल्चर लैंड.
5 acres एंड अबव कैन बी डिस्क्वालिफाइड। अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड आपकी फैमिली के पास है, आई एम सेइंग द आपकी फैमिली के पास है, दिस इज नॉट अ जॉइंट, मतलब आप अपनी फैमिली में देखो, फैमिली में क्या थे, मदर फादर, आप, सिबलिंग्स बिलो 18 एंड द चिल्ड्रन बिलो 18। इस फैमिली में अगर 5 एकर्स से कम लैंड है तो ठीक है, अगर ज्यादा है तो क्वालिफाइड आप नहीं होंगे, आप ईडब्ल्यू से बाहर हो जाएंगे। रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव कैन बी डिस्क्वालिफाइड। Now the residential plot is notified municipality 100 square yard and above could be disqualified। अब समझ रहे हो आप, नॉर्मल आप म्यूनसिपलिटी में नहीं तो 1000 स्क्वायर फीट होता है, ना नोटिफाइड म्यूनसिपलिटी में है तो 100 स्क्वायर यार्ड एंड अबव कुड बी डिस्क्वालिफाइड। वहां पे फीट है 1000 फीट, म्यूनसिपलिटी में आपका क्या है, स्क्वायर यार्ड पे काम होता रहता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, रेसिडेंशियल प्लॉट आउटसाइड नोटिफाइड म्यूनसिपलिटी 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव कैन बी डिस्क्वालिफाइड। So the family can have income 2 lakhs or 3 lakhs, but if the asset threshold is crossed, EWS eligibility can fail. Income test and asset test both are independent and both are important. An important concept is clubbing both. Property is different location, different cities and different districts may be clubbed for the asset test. Property कहीं पे भी हो, club होगा. So do not think विलेज वाली प्रॉपर्टी अलग है, सिटी वाली फ्लैट अलग है, किसी और स्टेट का प्लॉट अलग है, हम क्यों ही दिखाएं। सो इट डज नॉट मैटर। ओनरशिप एंड द पोजीशन बोथ मैटर्स करता है यहां पे। प्रॉपर्टी कैन बी इन द नेम ऑफ फादर, मदर, कैंडिडेट्स और ज्वाइंट ओन्ड, ये हो सकता है। तो आपकी अगर इसमें कहीं पे भी आपकी फैमिली के साथ प्रॉपर्टी ओन्ड है तो आपके एसेट में आते हैं। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, पेंडिंग म्यूटेशन, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी एंड पार्टीशन रिलेटेड केसेस में बी हैंडल्ड विद द कंप्लीट डिस्क्लोजर। वो अलग चीज है कि वो म्यूटेशन है, उसमें मैं बात कर रहा हूं कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी फैमिली के पास जो मैंने 4 पॉइंट बोला, मैं रिपीट करता हूं ये चारों पॉइंट को कि आपको ये पता होना चाहिए। तो जो पहली पॉइंट मैंने बोली थी, एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप रेसिडेंशियल प्लॉट नोटिफाइड म्यूनसिपलिटी में है तो 100 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर रेसिडेंशियल प्लॉट आउटसाइड द नोटिफाइड म्यूनसिपलिटी है तो 200 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप अगर इसमें सब में ठीक हो तो ही सोचना आपको आगे करना है, और ओनरशिप ऑफ द फैमिली चाहिए हमारा। तो लो इनकम इज नॉट ओनली एनफ, वी नीड टू हैव द एसेट प्रूफ ऑल्सो। सो लेट अस अंडरस्टैंड द एग्रीकल्चर लैंड रूल इन द डिटेल। तो हम आपको सब कुछ रूल्स में आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। इफ द फैमिली ओन्स or possess 5 acres agricultural land or more, EWS eligibility can fail। अगर आपकी फैमिली के पास 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है तो आप EWS में शायद नहीं आ सकते हो, क्वेश्चन मार्क है। द वर्डिंग इज इंपॉर्टेंट, 5 acres एंड अबव। सो एग्जैक्टली 5 acres शुड बी ट्रीटेड यहां पे होगा एज ए सीरियस डिस्क्वालिफाइंग थ्रेशोल्ड हो सकता है, बिकॉज यहां पे वर्ड क्या है, एंड अबव। लुक, अब आपको समझाने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल केस लेता हूं। लैंड इज इन द फादर्स नेम, रिलेवेंट है। लैंड अगर मदर के नाम पे है तो भी रिलेवेंट है। लैंड अगर आपके नाम पे है तो भी रिलेवेंट है। लैंड इज ज्वाइंटली ओन्ड, देन शेयर, लीगल रिकॉर्ड्स, पोजीशन, पार्टीशन एंड म्यूटेशन कैन मे मैटर। ज्वाइंटली है तो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि अच्छा ये लैंड मेरे पास है, मेरे पास टोटल है 8 एकर्स का लैंड, बट हम 2 भाई हैं और दोनों भाई जो है 18 साल से ज्यादा हैं, तो हम 4-4 कर सकते हैं। ये हो सकता है, लोग ऐसा करते हैं। लैंड इज इनहेरिटेड बट म्यूटेशन इज पेंडिंग, स्टिल डू नॉट इग्नोर। आप ऐसा कर सकते हो और सोच सकते हो। सपोज देयर इज 2.4 एकर्स इन वन डिस्ट्रिक्ट एंड 2.7 एकर्स इन अनदर डिस्ट्रिक्ट, तो ये दोनों अगर आपके नाम पे है या आपके फैमिली के नाम पे है तो दोनों कंबाइन होंगे, इसको याद रखिएगा। डिफरेंट लोकेशंस को क्लब किया जाता है। लैंड डू नॉट जनरेट इनकम, डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक इट इररिलेवेंट। अगर लैंड से इनकम नहीं आ रही है, लैंड में ग्रोथ नहीं आ रहा, तो इसका एग्जैक्टली डायरेक्ट हम उसको ना नहीं बोल सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, हम उस कंडीशंस के साथ जाते हैं। सम फैमिली से लैंड इज बैरन, अनयूज्ड, डिस्प्यूटेड, एंसेस्टर और ओनली ऑन पेपर। डू नॉट हाइड फैक्ट्स। आप कर सकते हो, किसी को बोलना मत, करने को बहुत कुछ होता है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप करना। आई ऑलवेज से इफ यू कैन प्रूव ऑन द पेपर, एवरीथिंग इज पेपर करेक्ट। डू नॉट हाइड एनीथिंग, शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड लेट द कंप्लेंट अथॉरिटी डिसाइड। होने को तो सर बहुत होता है, मेरे दोस्त ने ये किया, वो किया, वो किया। आई एम टॉकिंग ऑन ग्राउंड एंड ऑन रिकॉर्ड।
तो जो है मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप कंसल्ट कर सकते हैं लोगों से जिससे भी आपको कंसल्ट करना है। अनदर रिस्की बिहेवियर इज ट्रांसफरिंग लैंड जस्ट बिफोर एप्लीकेशन टू क्रिएट एलिजिबिलिटी। लोग ऐसा करते हैं, लोगों ने ऐसा किया है, बट ये रिस्की है। आई विल नॉट गाइड एनी वन ऑन मैनिपुलेशन। Genuine legal transactions are one thing, same full transactions are another thing. Verification can look into the timing, position, mutation, relationship and genuine. जब वेरिफिकेशन आती है, जब धार मतलब समय खराब होता है ना, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। नाउ द नेक्स्ट की बात करते हैं, रेसिडेंशियल फ्लैट रूल। द नेक्स्ट एसेट टेस्ट इज रेसिडेंशियल फ्लैट रूल। If the family owns or possesses a residential flat of 1000 square feet or more, EWS eligibility can fail. Exactly 1000 square feet should not be treated as safe. 1000 square feet and above is concerned. 1000 square feet हो या उससे ऊपर हो तो concern होता है. Now the common question is carpet area or build-up area or super build-up area. Here do not rely on the YouTube comments or the builder's brochure convenience. Check the officially property record, look at the sales deed, look at the allotment letter, look at the municipal records, look at the property tax record, look at the sanction plan. अगर आपके किसी में भी अगर लिखा हुआ है सुपर बिल्डअप एरिया पे आपका पेपर बिका है, आपका जो भी हुआ है वो सुपर बिल्डअप एरिया पे हो रहा है, आप टैक्स सुपर बिल्डअप एरिया पे दे रहे हैं, आपने खरीदा सुपर बिल्डअप एरिया को है, तो उसको कंसिडर करेंगे। कारपेट को हम कंसिडर नहीं करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली check what the complaint authority is accepting for the EWS. देख लो आपका अथॉरिटी क्या चेक कर रहा है या आप क्या क्या चेक करवाना चाहते हो, इंपॉर्टेंट है। वन डॉक्यूमेंट सेज 980 स्क्वायर फीट, अनदर डॉक्यूमेंट सेज 1050 स्क्वायर फीट। डू नॉट इग्नोर द सेकंड डॉक्यूमेंट्स। आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, मैं इतने सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? अगर आपको प्रॉब्लम्स हो तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्लेरिफाई बिफोर अप्लाइंग और अपलोडिंग। अनदर मिथ, इफ देयर इज अ होम लोन द फ्लैट इज नॉट काउंटेड। नहीं, गलत है। बिकॉज होम लोन में फ्लैट तो बैंक का होता है, लोन डज नॉट रिमूव ओनरशिप, ओनरशिप आपका है। मोर्टगेज डज नॉट इरेज प्रॉपर्टी एरिया, मोर्टगेज पे है बट है तो आपका ना। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट, ज्वाइंटली ओन्ड फ्लैट, इनहेरिटेड फ्लैट, फैमिली सेटलमेंट और पेंडिंग रजिस्ट्रेशन मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली। वो अगर नहीं है ना कुछ कि हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है कुछ और है तो अलग बात है, बट लोन को हम काउंट नहीं करते हैं। द रूल इज सिंपल, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में अगर आप हैं मैटर्स करता है किसी भी और चीज से ज्यादा, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम आते हैं रेसिडेंशियल प्लॉट रूल्स को समझने के लिए। दे आर द टू डिफरेंट थ्रेशोल्ड। इफ द रेसिडेंशियल प्लॉट इज इन द नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी 100 square yard and the above can be disqualified. If residential plot is outside notified municipality, 2000 square yard and above can be disqualified. Exactly 100 square yard is notified in the municipality. अगर 100 से बिलो है तभी होगा। Exactly 200 square yard outside notified municipalities should be treated as, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। The key phrase here is the location classification. Not every urban looking area is automatically a notified municipality. क्या आपका जो घर है वो म्यूनसिपैलिटी के अंदर आता है या नॉन म्यूनसिपैलिटी के अंदर आता है? सर मैं तो सिटी में रहता हूँ, बट बहुत सारी सिटीज़ में कुछ एरिया जो थोड़ा सा आउटस्कर्ट सिटीज़ होते हैं अभी तक म्यूनसिपैलिटी में कवर नहीं हुए हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, नगर परिषद, नगर पंचायत, डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड नोटिफाइड एरिया स्टेटस शुड बी चेक थ्रू ऑफिशियल रिकॉर्ड कि आप हो या नहीं हो। If a house is built on a plot, whether the flat rule, plot rule, or the local classification applies may depends on the records and authority interpretation. हम प्लॉट की बात कर रहे हैं, हम फ्लैट की भी बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट प्लॉट, वर्बल पार्टिसिपेशन या वर्बल पार्टीशन हुआ है, इनकम म्यूटेशन हुआ है, इनहेरिटेड शेयर है, डेवलपमेंट अथॉरिटी अलॉटमेंट हो रही है और नीट केयरफुली डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। Commercial property is another area where the suggested get confused. Commercial property is another area है. The central list asset test focus on the agricultural land, residential flat and residential plot. Commercial property may still matter for the income and disclosure. Commercial property है सर, ये मेरा घर है, छोटा सा घर है और मैं एक बड़ा सा दुकान है, हम दुकान को कंसीडर करें या नहीं करें? नहीं, दुकान कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वो इनकम के लिए हो सकता है, क्या है क्या नहीं है, आपको अभी घर को कंसीडर करना है। टोटल ग्रॉस इनकम 8 लाख से कम होगी और इसको देखेंगे। सो डू नॉट हाइड, लेट द अथॉरिटी एवेल्युएट। घर का मांगा है तो हम घर का ही देंगे ना, बताएंगे क्यों? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ।
द टेक अवे वेरीफाई लोकेशन एंड रिकॉर्ड्स, डू नॉट एज्यूम कि वो रिकॉर्ड्स नहीं देखेंगे, बिकॉज आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जब आप सब कुछ पैन आधार कार्ड से लिंक करते हो तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ दिखना स्टार्ट करता है। सेंट्रल ईडब्ल्यूएस वर्सेस स्टेट ईडब्ल्यूएस, जिस तरह मैंने वीडियो बनाई है एनसीओबीसी का, उसी तरह यहाँ पे भी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, सेंट्रल ईडब्ल्यूएस वर्सेस स्टेट ईडब्ल्यूएस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक बात की थी रेसिडेंशियल प्लॉट के, उसमें हमने सब कुछ कवर किया है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि सेंट्रल और ईडब्ल्यूएस में क्या है। मेनी स्टूडेंट थिंक इफ अ डॉक्यूमेंट सेज ईडब्ल्यूएस इट विल वर्क एवरीवेयर। दिस इज रिस्की, रियली रिस्की। स्टेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मेड डिजाइन्ड फॉर स्टेट जॉब्स, state admissions, local schemes, or local benefits. Their format, authority, validity, income rules for the purpose may different. उनका purpose different हो सकता है, उनका format different हो सकता है। CAT and IIM admissions comes under the Central Education Institution framework. So the CAT and IIMs, in this, you should focus on the central format EW certificate and the central rules. सर कैसा दिखता है ये फॉर्मेट? आप कैट की वेबसाइट पे जाइएगा, वो दिख जाएगा आपको। A proper central format EW certificate should have income, asset declaration, central list related category declaration, correct issuing authority, signature, seal, validity years and correct financier. सर मेरे पास स्टेट का है तो मैं क्या करूं? आप सेंट्रल की बनाने की तैयारी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा EWSB 1 अप्रैल 2026 के बाद ही बनना है। सर मैं कहाँ से बनवाऊंगी? मेरे पास तो बना हुआ है, अब ये बोल रहा है कि मैं नहीं बनाऊंगा। तो कुछ मत कीजिए, आप स्कैट की वेबसाइट पे जाइए, फॉर्मेट डाउनलोड कीजिए, अपना डेटा फिल कीजिए, अपने स्टेट सर्टिफिकेट को लेके जाइए, उनको बोलिए कि इसमें साइन कर दें। दिस इज डन, हो सकता है। एंड इनकम सर्टिफिकेट अलोन इज नॉट एनफ, अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज नॉट एनफ, अ स्टेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इज नॉट एनफ। इफ योर स्टेट पोर्टल आस्क स्टेट ईडब्ल्यूएस और सेंट्रल ईडब्ल्यूएस, चूज द प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द कैट एंड IIM पर्पस। अगर आपसे पूछता है कि आपको स्टेट या सेंट्रल चाहिए तो आप सेंट्रल मांगिए। If you are confused, ask the competent authority, all the mentors, all the consultant and get proper clarification. Do not rely on the cyber cafe वाले ने बोला चल जाएगा, ऐसा नहीं कीजिए। कहीं पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। बिफोर अपलोड वेरीफाई द फॉर्मेट। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अगर आपका IIM में सिलेक्शन हो गया और आपने किसी और फॉर्मेट में अपलोड किया तो बोलते हैं कि अपडेट करो विद इन 10 डेज। तो देख लीजिए उसमें सील कौन सी है, डिक्लेरेशन कौन सा है, कौन साइन कर रहा है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सर्टिफिकेट ईयर कंफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म, सर मेरा पिछले साल का बना है, मैंने पिछला बार कैट दिया था, अभी यूज कर सकता हूँ? नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड 4 डिफरेंट डेट रिलेटेड टू आइडियाज। इनकम फिनेंशियल ईयर, सर्टिफिकेट फिनेंशियल ईयर, सर्टिफिकेट इशू डेट, कैट रजिस्ट्रेशन डेडलाइन और इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन डेडलाइन। बहुत ये 4 इंपॉर्टेंट चीज है। इनकम फिनेंशियल ईयर्स मीन्स द प्रीवियस फिनेंशियल ईयर्स हुज फैमिली इनकम बीइंग असेस्ड। आप कैट 2026 देख रहे हो तो आपको लास्ट फिनेंशियल ईयर का सब कुछ डेटा देना होगा सर्टिफिकेट बनवाने में, और सर्टिफिकेट इस फिनेंशियल में बनना चाहिए। लास्ट फिनेंशियल ईयर का देखेंगे बट बनना इसमें चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये याद रखिएगा। सर्टिफिकेट वैलिडिटी ईयर मीन्स एकेडमिक्स और एडमिशन साइकिल फॉर विच सर्टिफिकेट इज ट्रीटेड एज वैलिड। नाउ यहाँ पे सर एग्जाम तो 2026 में कैट दे रहे हैं, मुझे इस साल का चाहिए, बट एडमिशन तो 2027 फाइनेंशियल में होगा तो उस साल का चाहिए। बहुत सारे कॉलेज उस साल का भी मानेंगे, तो मतलब आपको 2 EWS सर्टिफिकेट बनवाना ही बनवाना होगा, एक इस साल का और एक अगले साल का। अगर आप कुछ सर्टेन कॉलेज में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल FMS में ज्वाइन करते हैं और आपके पास NCOBC और EWS का है, तो FMS बोलता है कि मुझे लास्ट ईयर का भी दो और इस साल का भी दो। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल, बाकी हर एक कॉलेज का अपना होता है। इशू डेट मीन्स डेट ऑन विच सर्टिफिकेट वाज इशूड शुड बी ऑफ दिस फिनेंशियल और द नेक्स्ट फिनेंशियल, दोनों। डेडलाइंस का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल कैट और IIMs डेट किस डेट पे खत्म होता है, ये है। नाउ कैट का जो एंड जनरली होता है दैट इज 15th और 20th ऑफ अगस्त होता है, तो आप अपने EWS और NCOBC सर्टिफिकेट को उससे पहले अप्लाई कर चुके होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगस्त के बाद अप्लाई करेंगे तो वो क्वेश्चन मार्क बनता है। तो आपके पास EWS का सर्टिफिकेट और NCOBC का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद और 20th अगस्त 2026 के पहले का होना चाहिए, या एटलीस्ट इसमें अप्लाई कर दिया जाना चाहिए। For CAT 2026, EWS certificate was required for 25-26 and income assessment was 24-25. सर्टिफिकेट इस साल का होगा, असेसमेंट लास्ट ईयर का होगा। For CAT 2026, the likely logic May 26-27 validity and the FY 25-26 as income assessment, but final confirmation must come from the official this. वो बुलेटिन में आपको बताएंगे, समटाइम्स नहीं बताते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आपको 1 अप्रैल से लेके 20th अगस्त के बीच का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपके पास होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई डाउट? तो सर्टिफिकेट जब भी आप बनवाते हैं तो इसमें आपका असेसमेंट ईयर ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से लिखा होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपसे बोलूँगा अप्लाई अर्ली। अगर आपको लगता है कि आप ईडब्ल्यूएस, एनसी, ओबीसी में हो तो अप्लाई अब अर्ली करो। सेफ एक्नॉलेजमेंट, जो भी अप्लाई करते हो ना उसका एक्नॉलेजमेंट आपके पास सेफ होना चाहिए। जो भी फॉर्म भरते हो फॉर्म आपके पास सेव होना चाहिए। आपके पास कोई एप्लीकेशन नंबर्स आता है वो होना चाहिए, एफएमएस आता है, सॉरी एसएमएस आता है वो होना चाहिए, ईमेल आती है, पोर्टल स्क्रीनशॉट है, सब कुछ सेव करके रखो, आगे काम देगा। बिकॉज ये सब अगर आपके पास टिल द टाइम ऑफ द कैट एडमिशन नहीं आता है तो हम इसे यूज करके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बेसिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको बताता हूं। लेट अस डिस्कस ऑल दीज डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए। ऐसे ये हर एक स्टेट और हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग हो सकता है, हर एक सिटी में अलग हो सकता है, बट आपके पास आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आधार, पैन, वोटर आईडी अगर है तो आपका काम चल जाएगा। क्लास 10 का सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अगर उन्होंने मांगा तो। फैमिली का इनकम प्रूफ चाहिए होगा। कंपोजिट डॉक्यूमेंट्स आपको देखना होता है। आप जाके तहसीलदार से या कहीं इनकम प्रूफ बनवा सकते हैं। तहसीलदार आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देता है। राशन कार्ड, फैमिली रजिस्टर जो भी आपके पास है आप उसको लेके जाइए। इनकम रिकॉर्ड्स लेके जाइए। आपके पास होगा जीएसटी ओएसटी फाइल करते हैं तो वो आपका डेटा कभी मान सकता है। प्रॉपर्टी और लैंड रिकॉर्ड्स आपको उसमें लिखना होता है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। आपको ये सारा कुछ लिखना होता है। देन यू आर गोइंग टू हैव ऑल दीज थिंग्स। अगर ये है तो सर्टिफिकेट देंगे, फिर हम कैट और आईएम डॉक्यूमेंट्स की परफॉर्मा को देखेंगे और सब कुछ हम आगे जाएंगे। और मैं हमेशा बता देता हूँ, आपके पास सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में हो तो अच्छी बात है। विथ सॉफ्ट कॉपी एक फिजिकल फोल्डर भी मेंटेन रखिए। तो हमें एक सॉफ्ट कॉपी रखना होगा, एक फिजिकल फोल्डर मेंटेन रखना होता है कि कभी भी जब भी जरूरत हो हम उसको दिखा सकते हैं। उसका अच्छे से नाम करो, अच्छे से सेव करो और सबसे इतने अच्छे से सेव करो कि टाइम पे मिल जाए, क्योंकि अगर हम इतने अच्छे से सेव करते हैं कि टाइम पे नहीं मिल पाता है। नाउ लेट अस कनेक्ट ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट्स विद द कैट फॉर्म एंड IAM वेरिफिकेशन जर्नी। ईडब्ल्यूएस वेरिफिकेशन डज नॉट एंड व्हेन यू अपलोड द पीडीएफ इन द कैट फॉर्म। आपने कैट फॉर्म में ईडब्ल्यूएस अपलोड कर दिया, वहां पे खत्म नहीं होता है। कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपने अपलोड किया है तो आफ्टर द एंड ऑफ द लास्ट डेट थर्ड पार्टी असेसमेंट होता है कि आपने ईडब्ल्यूएस सही अपलोड किया है नहीं किया है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जिन्होंने अपलोड किया है उनके पास मेल आता है, उनके पास कॉल कभी कभी आ जाती है या मैसेज आता है कि आप अपने ईडब्ल्यूएस या सर्टिफिकेट को या बाकी किसी सर्टिफिकेट को अपडेट कीजिए। ये वैलिड नहीं है। वहां पे होता है कैट रजिस्ट्रेशन नंबर में होता है जब आता है कैट का रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो हमें देखना होता है कि हमें क्या करना है। अब हम इंडिविजुअल 20 को शॉर्टलिस्ट में जाते हैं। वहां पे आपसे कैटेगरी प्रूफ मांगा जा सकता है अगर वो आपसे बोले तो। अब मैंने क्या कहा कि कैट का फॉर्म भर दिया है, कैट का रिजल्ट आ गया है, अब मुझे अलग अलग आयाम्स में फॉर्म भरने हैं तो आपसे वहां पे भी बहुत बार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को अपलोड करने को बोलते हैं और वहां वो चाहते हैं कि अपना आप सेंट्रल फॉर्मेट में भरिए। चौथा कहां पे होता है आपका वैट पीआई और इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में बी चेक्ड। Certificate numbers, issue date, validity years, financial year, authority seals and format may be verified. Most of the time, yes, it is verified during the VAT PI interview. We called it DB, document verification. Fifth, जिसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, फाइनल एडमिशन ऑफर। द ऑफर में बी प्रोविजनल सब्जेक्ट विथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब भी अगर आपको ऑफर मिलता है कि यू आर सेलेक्टेड, वहां पे लिखा होता है प्रोविजनल ऑफर, वहां पे होगा। तो वहां पे आपको बहुत बार प्रूफ करना होता है। और लास्ट, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कॉलेज भी आपसे वो बोलते हैं कि अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। कहीं भी किसी भी स्टेज में अगर प्रॉब्लम होते हैं, और सबसे बड़ा इशू होता है जब हम कॉलेज में जाते हैं अपना बैगेज लेके कि हम ज्वाइन करने आए हैं, दीज आर माई डॉक्यूमेंट्स, और वहाँ पे वो गलत करते हैं, उनको लगता है कि इसमें कुछ इशू है, तो वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आपके कैंडिडेट को कैंसिल कर सकते हैं। सो सर्टिफिकेट ऑथेंटिक होना एक क्वेश्चन है, अंडरलाइंग एलिजिबिलिटी टू होना अदर क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर ज़्यादा काम करता है। योर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन, कैट फॉर्म, IAM फॉर्म्स एंड ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स शुड टेल द सेम स्टोरी कि मैं क्या हूँ और मेरा क्या है। तो अगर आप सेम स्टोरी बोलते हैं देन यू आर गोइंग टू से कि नहीं चलो सब ठीक है। लेट अस फिनिश दिस मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स एंड फाइनल चेकलिस्ट। मिस्टेक 1, फॉल्स क्लेम से बचेंगे। इफ यू आर नॉट जेन्युइन एलिजिबल, द रिस्क इज नॉट जस्ट रिजेक्शन, इट कैन लीड टू कैंसिलेशन और फर्दर एक्शन। मैं आपको एक बात बता दूं, देयर आर फ्यू कैंडिडेट्स जिसको IAM ने, टॉप IAMs ने 3 साल के लिए डिबार्ड कर दिया है। दिस इज द वन एक्शन कुड बी टेकन।
But again, I am saying, if you can prove the paper, you could think of. मिस्टेक नंबर 2 जो लोग करते हैं, काउंटिंग ओनली सर्टिफिकेट इनकम। ईडब्ल्यूएस इज बेस्ड ऑन द फैमिली इनकम। अगर आप ओनली अपने सर्टिफिकेट इनकम पे बात करते हो, अपने कैंडिडेट्स इनकम पे बात करते हो, तो नहीं है ये पर्सनल नहीं है। ईडब्ल्यूएस पर्सनल नहीं है, ईडब्ल्यूएस फैमिली का चीज़ है। मिस्टेक नंबर 3 जो लोग करते हैं, ओनली टैक्सेबल इनकम को कंसिडर करते हैं। हमें ग्रॉस इनकम चाहिए। मिस्टेक नंबर 4 जो कंसिडर करते हैं, आईटीआर का मतलब नो, आईटीआर का मतलब नो इनकम। मेरे पास आईटीआर नहीं, मैं इनकम नहीं हूँ। आपको इनकम चाहिए होगा, इनकम प्रूफ लगाना होगा। मिस्टेक नंबर 5 जो करते हैं, हम एग्रीकल्चर इनकम को इग्नोर करते हैं। नहीं, आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। मिस्टेक नंबर जो 6 लोग करते हैं, प्रॉपर्टी और अदर सिटी कि मैं ईडब्ल्यूएस यहाँ से बनवा रहा हूँ, मैं किसी और स्टेट में है, हम इसको इग्नोर कर दें। नहीं, आगे जब आपके सारे एसेट को क्लब किया जाएगा तो हो सकता है ये क्वेश्चन मार्क्स उठे। मिस्टेक नंबर 7 जो करते हैं, यूजिंग एन ओल्ड सर्टिफिकेट विदाउट चेकिंग वैलिडिटी ईयर एंड द फाइनेंशियल ईयर। हम ओल्ड सर्टिफिकेट नहीं यूज करेंगे। 1 अप्रैल 2026 के बाद और 20th अगस्त 2026 के पहले का बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या एटलीस्ट इस टाइम पे हम अप्लाई कर चुके होंगे। मिस्टेक नंबर 8 करते हैं कि हम स्टेट ईडब्ल्यूएस को हम कैट और आईएम्स के लिए बहुत बार यूज कर देते हैं। कुछ जगह ये चल जाता है, बट बहुत जगह आपको सेंट्रल ईडब्ल्यूएस परफॉर्मेंस चाहिए। मिस्टेक नंबर 9 जो लोग करते हैं, वो रॉन्ग फॉर्मेट यूज करते हैं, रॉन्ग ऑथोरिटी यूज करते हैं, मिसिंग सील होता है, मिसिंग डिक्लेरेशन होता है, अनरीडेबल स्कैन और नाम मिसमैच हो जाता है। तो नहीं, नाम गलत हुआ है, सुधरवाइए, सब कुछ सुधरवाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10वां मिस्टेक जो करते हैं, वो इनकंसिस्टेंट डिटेल अक्रॉस कैट फॉर्म, सर्टिफिकेट एंड आईएम डॉक्यूमेंट। कुछ वहाँ कुछ और लिखेंगे, यहाँ कुछ और लिखेंगे, यहाँ कुछ और लिखेंगे। बट ये मान के आपको रखिए, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कैट फॉर्म में अपने आप को ईडब्ल्यूएस नहीं दिखाया है, तो आप आईएम फॉर्म में अपने आप को ईडब्ल्यूएस नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन जो बाकी कॉलेज के फॉर्म्स हैं, आईआईटीज या टिस, वहाँ पे आप अपने को ईडब्ल्यूएस दिखा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैटेगरी स्टेटस चेक कर लीजिए, फैमिली डेफिनेशंस को चेक कर लीजिए, ग्रॉस इनकम चेक कर लीजिए, एग्रीकल्चर लैंड चेक कर लीजिए, फ्लैट एरिया चेक कर लीजिए, रेसिडेंशियल प्लॉट और क्लासिफिकेशन चेक कर लीजिए, सेंट्रल फॉर्मेट को चेक करना बहुत जरूरी है, सर्टिफिकेट ईयर और फाइनेंशियल ईयर चेक कर लीजिए, कैट बुलेटिन को एक बार देख लीजिएगा। ऐसे मैं आपको बता दूंगा, जो भी मैं बताया बेस्ड ऑन द कैट बुलेटिन ही है। कुछ नया अपडेट होता है तो भी मैं यहाँ अपडेट कर दूंगा, तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके काम की चीज़ें ही आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, इनकम बिलो 8 लाख का मतलब आप ईडब्ल्यूएस में नहीं है। आपको अपने एसेट, अपनी फैमिली की एसेट को बताना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्टिफिकेट मिल गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एलिजिबल हो गए। बहुत बार आईएम्स में जब आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, आईएम्स आपसे बोलती है कि भैया मेरे को आईटीआर दिखाओ सबका। तुम आईटीआर में अगर इनकम, टोटल फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा हो गया तो आपके कैंडिडेचर पे क्वेश्चन उठेगा और कैंसिल किया जाएगा, और हो सकता है कभी कभी डिबार्ट किया जाए, ऐसा हो सकता है। तो जेन्युइन रहिए, कंप्लीट डिस्क्लोजर दीजिए, करेक्ट सर्टिफिकेट यूज कीजिए, कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन दीजिए और अच्छे से लाइन को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, your best effort, my best guidance, together we create the super best result. For this we have quant classes, LRDI classes. We came with the India's perfect mocks. Mock 1 और Mock 2 को हम पहले स्टार्टर बना रहे हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी द सुपर टफ, बट उसके बाद धीरे धीरे मॉक्स उसी लेंथ पे आएंगे, उसी बैकग्राउंड पे आएंगे, उसी लेवल पे आएंगे जिसपे कैट आ सकती है। तो चाहे वो कैट के साथ भी हो या कैट के बाद भी हो, थिंक कैट, थिंक एजुकेशन।